After successfully launching the maiden developmental flight of its heavy rocket GSLV Mk-III earlier this month, Indian Space Research Organisation, Isro, is all set to achieve yet another milestone with the launch of no less than 31 satellites at one go on June 23. भारत के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk-III का ऐतिहासिक प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब कार्टोसैट सीरीज का सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। निगरानी की अपनी दक्षता के कारण कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट को आई इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। कार्टोसैट 2 सीरीज का ये चौथा सैटेलाइट है। इसका वजन 550 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट को PSLV C38 रॉकेट के जरिए जून के आखिरी हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट की कक्षा में स्थापित होने के साथ ही भारत अमेरिका, इजराइल और चीन जैसे देशों के विशिष्ट वर्ग में शामिल हो जाएगा। भारत के पास एक ऐसा जासूसी सैटेलाइट होगा जो धरती पर होने वाली गतिविधियों की नजदीक से निगरानी कर सकता है। इस सैटेलाइट में पैनक्रोमैटिक कैमरा लगा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दिखने वाले क्षेत्र में पृथ्वी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लेने में सक्षम है। इस हाई रेजोल्यूशन पैन कैमरा के जरिए 9.6 किलोमीटर की दूरी तक की तस्वीरें ली जा सकती हैं। कार्टोसैट 2C सीरीज की सैटेलाइट का पहली बार प्रयोग 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त हुआ था। सेना को LOC पर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह करने में इस सैटेलाइट से काफी मदद मिली थी। कार्टोसैट सैटेलाइट की तस्वीरों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर कार्टोग्राफिक एप्लीकेशंस, शहरी और ग्रामीण एप्लीकेशंस, तटीय भूमि उपयोग और रेगुलेशन, उपयोगिता प्रबंधन जैसे सड़क नेटवर्क की निगरानी, जल वितरण जैसे कामों के लिए किया जाता है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होते ही ये सैटेलाइट सीमा पार घुसपैठ करने वाली पाक आर्मी की सीधी तस्वीर लेकर इंडियन आर्मी को पहले ही चौकस कर देगा। इस सैटेलाइट के लॉन्च होते ही इंडियन आर्मी तकनीकी रूप से और भी मुस्तैद हो जाएगी। Isro's PSLV C38 with 31 satellite has actually this mission to actually put 31 satellites in the orbit is now underway as we speak. Let me go across to my colleague Srinjoy Chaudhary who joins us on the phone line for more on this. Srinjoy, give us more details. This is going to be yet another historic launch by Isro. Yes, this is a polar satellite launch vehicle, and as you rightly said, it will launch 39 satellites, including 29 very small satellites from different countries. This, of course, is in Sriharikota, and this has just begun. What we've heard is that this has a total payload of about 1,000 kilos. जिसके बाद दुनिया फिर से दंग रह गई। इसरो ने PSLV पर फिर से भरोसा दिखाते हुए शुक्रवार को एक साथ 31 सैटेलाइट लॉन्च कर नया कीर्तिमान बना दिया। Austria, Belgium, Chile, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Slovakia, the UK, and the US. There will be one nano satellite from India made by students of Noorul Islam University of Tamil Nadu. इसके साथ ही 30 अन्य नैनो सैटेलाइट्स को लेकर शुक्रवार को PSLV ने 9:29 पर सुबह उड़ान भरी। इस उड़ान में कुछ विदेशी सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में शामिल हैं। इसरो ने कहा कि इन 30 उपग्रहों का कुल भार 243 किलोग्राम और कार्टोसैट को मिलाकर सभी 31 उपग्रहों का कुल भार 955 किलोग्राम है। And it has launched 100 satellites once, over 100 in February, ISRO, and this one will have 31. It's not the numbers of the satellites alone, it's also their weights, and these have 29 nano satellites. Now, nano satellites are very small, and in some ways they are more difficult to launch. So this rocket very clearly is a sign of very high levels of scientific progress. You won't be able to launch 31 satellites, including 29 nano satellites, unless you are a very developed space power. The Americans surely can do it, yes. The Russians can do it, a few other countries can do it, but nobody else. And now really India is also doing ability. it. But Srinjoy, if you could tell us the importance of this launch, what exactly is this going to help India with? Well, first of all, India
there are satellites which deal with India's communication systems, India's information and broadcasting systems, India's television, India's communication. A lot of that really depend on India's satellite launches. And this will actually earn money for India, because there are satellites from different countries in the world, probably about 14 or 15 countries. सफल प्रक्षेपण करता दिख रहा है। यही कारण है कि कई देशों ने जो है वो जो क्रेडिबिलिटी है वो इसरो की लगातार देखी जा रही है। यही कारण है कि देश जो है जो अलग अलग देश है वो अब इसरो के जरिए अपनी इन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लागत में इसरो के जरिए सैटेलाइट का प्रक्षेपण होता है। यही कारण है कि तमाम जो देश चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, इन तमाम देशों के सैटेलाइट रॉकेट के जरिए जो है प्रक्षेपण किए जा रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि PSLV इसरो का अब तक का सबसे भरोसेमंद रॉकेट वो जो क्रेडिबिलिटी है वो इसरो की लगातार देखी जा रही है। यही कारण है कि देश जो है जो अलग अलग देश है वो अब इसरो के जरिए अपनी इन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लागत में। The 712 kilograms weighing Cartosat 2E is the sixth satellite in the Cartosat 2 series. It will provide regular remote sensing services using its panchromatic and multispectral cameras. The total weight of the 30 satellites is 243 kilograms, while all the 31 satellites including Cartosat weighs about 955 kilograms. 3, 2, 1, 0. इसरो जब अपने नए मिशन पर निकलता है तब दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ इसरो के काउंटडाउन पर होती है, क्योंकि हर बार इसरो नया इतिहास रचता है। एक साथ 104 सैटेलाइट और बाद में GSLV 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग इसी कड़ी का हिस्सा थी। और अब इसरो ने अपने विश्वस्त PSLV से ऐसा ही एक और कारनामा किया है। इसरो द्वारा शुक्रवार को 31 सैटेलाइटों के साथ अंतरिक्ष में जा रहे PSLV की ये 40वीं उड़ान थी। इस उड़ान में PSLV अपने साथ कार्टोसैट 2E सैटेलाइट को आसमान में लेकर गया, जो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट यानी पृथ्वी पर नजर रखने वाला सैटेलाइट है। PSLV ने श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन सैटेलाइट्स को स्थापित किया। PSLV के साथ जाने वाले सैटेलाइट्स में 29 विदेशी हैं, जो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक गणराज्य, फिनलैंड, जर्मनी, इटली जैसे 14 देशों के हैं। इसमें एक सैटेलाइट तमिलनाडु के नूरुल इस्लाम विश्वविद्यालय के छात्रों ने तैयार किया है। वहीं PSLV के साथ कार्टोसैट 2E सैटेलाइट 712 किलो वजनी है, जो कार्टोसैट 2 सीरीज का 6वां सैटेलाइट है। PSLV द्वारा प्रक्षेपित किए गए सैटेलाइट से भारत को सबसे बड़ी मदद सीमा पर घुसपैठ जैसी गतिविधियों पर मिलेगी। वहीं भविष्य में अगर भारतीय सैन्य बल किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो उसके लिए ये सैटेलाइट सटीक तस्वीरें मुहैया करवाएगा। उधर अमेरिका के पास नासा जैसी स्पेस एजेंसी होने के बाद भी इसरो के पास से अपने सैटेलाइट भिजवाता है। इसका कारण भारत द्वारा भेजे गए सैटेलाइट्स की लागत का न्यूनतम होना है।